अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग. डू यू हैव प्लेसेस वेयर यू थिंक के आपने बहुत कोशिश किया, यू हैव ट्राइड अ लॉट एंड स्टिल यू हैव नॉट बीन एबल टू रीच आउट? हम्म. आपने ऐसा देखा कि किसी एक जगह में आपने बहुत कोशिश किया फिर भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर यू आर नॉट बीइंग एबल टू अचीव दैट गोल? हाँ. तो तब आप क्या करते हैं? और कभी कभी आप थक जाते हैं, यू गेट टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड यू थिंक दैट ओ माय गॉड, आई थिंक नहीं होने वाला है बिल्कुल, जितना भी कोशिश करती हूँ इट्स अ डेड एंड, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, जितना भी और ज्यादा हार्ड कोशिश कर रही हूँ, ब्लॉक. होता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है दरवाजा. ऐसा हुआ है आपके साथ? Didi, I didn't have exactly that, but my case always been like I never could give my 100%. I always feel like I didn't give my best. हम्म. So my wishful thinking or even pray to God will always be like, make me able so I can give my best because हम्म. sometimes I think I have what it required, but हम्म. I'm not giving my best, or for some reason I'm distracted. I'm playing with too many balls in the air at the same time. हम्म. So हम्म. फोकस का वो इशू रहता है मेरे साथ, but not like what you said, but yeah, similar. ओके. ओके. बट आपको, आप देते हैं कुछ हद तक तो देते हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप पूरा बेस्ट नहीं दे रहे हो, राइट? यू आर गिविंग I सम टू I सम give, एक्सटेंट. yeah, I initiate like we talked yesterday, the Brahma energy. I हम्म. initiate, it happens, but then I don't sustain it, or I don't go do it long enough that I get a हम्म. breakthrough. So there is हम्म. many thing I started, but I don't sustain it like long enough, हम्म. so I हम्म. get some results out of it. Sometimes you don't sustain it because sometimes you feel that resistance are it. Do you also feel that resistance is coming? That's why you don't sustain it? Not Challenges are because of coming or the not resistance? not because of resistance, but these days everybody wants the results right away, right? Okay. And for some good things we have to wait, and Hmm. waiting without a result, it's Hmm. frustrating. And also, Hmm. like, you feel like you're accountable to many other people's also, so Hmm. you must produce. If you can't produce, it's not working out for you. But maybe you have to do one more shot, then it's successful. So Hmm. I don't wait. That's the problem in me. Hmm. Hmm. Okay. 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 Yes, that is one kind of problem. Sometimes you can also say it's called ADHD, adult ADHD. Okay. ADHD, this topic is not about that, but sometimes attention deficit disorder, or hyperactivity disorder. Sometimes ADHD is not only with children, it can also happen with human beings. One of the reason of having ADHD is ADHD develops to child who are feel very unsafe in the family environment. जब उसका बहुत पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है, वो सेफ नहीं फील कर रही है, या फिर पेरेंट्स में झगड़ा नहीं हो रहा है, उसके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, या फिर स्कूल में कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इन द स्कूल एंड द चाइल्ड इज नॉट taught a, a good behavior of adapting to stress. So a child is in stress and it doesn't know what to do with the stress. That's when a child develops ADHD. Starts trying to, मुझे स्ट्रेस तो डील नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो हाउ टू डील विद स्ट्रेस, सो लेट मी जस्ट कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. In some way deep down ADHD or these kind of attention, changing from one, also feel comes to people who are not very safe and grounded in their own, or in their own life. Okay. So this can also be known more deep when we do therapies, तो exact reason पता चल जाता है कि कहाँ से हो रहा है. Okay. Rajiv. So, but for now, just to understand that, okay, that it's okay, you are not being able to, but step by step. See, spirituality, sometimes we feel that again, yes, again, joining spirituality, thinking that आज ही magic हो जाएगा, will be again a, you know, ये backfire करेगा आपके जीवन में. समझ रहे हो राजीव? It's a beautiful journey. It's such a beautiful journey.
It's a lifelong journey. And there will be ups and downs, challenges, and there will be victories also, big victories and joys. Everything you have to go through. You cannot just go through the highs without going through the lows, right? So it's like a process. Okay. But today, just I'm taking this session. Just see if somewhere deep down you are doing this, not just for Rajiv, everybody else. Okay. लगता है कि हम बहुत बहुत कोशिश की है, बहुत इवन लाइक हार्ड वर्क करना है, बहुत 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 मेहनत लगानी है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना है, हाँ तभी जाके होगा। हम्म? और मैंने आप लोगों को बोला है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दो तो नहीं होता है। ओके। या फिर होगा लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत, बहुत एफर्ट, बहुत फिजिकल मेहनत लगेगा। इट विल नॉट हैपन एफर्टलेस। एफर्टलेस नहीं होगा इसमें। हाँ, बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत लग जाएगा अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके करना है। The way of the Tao is to understand that you have to work in the way of non-action. आप एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हो, बट यू फील एज इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। द ब्यूटी ऑफ दाओ इज दैट। Yeah, this verse that I am going to share right now and I'll explain talks about that. Hmm? See, 43rd verse, it says, the softest of all things overrides the hardest of all things. That without substance enters where there is no space. Hence, I know the value of non action. Teaching without words, performing without actions, few in the world can grasp it. That is the master's way. Rare indeed are those who obtain the bounty of this world. So बोल रहे कि नेचर में देखो ना, इफ यू जस्ट सी नेचर ऑल्सो, नेचर दाओ यूनिवर्स, when you see the universe and you see nature, we also have the divine inside us. बट हम में क्या है ना, हम वी आर मडीड, हमारे पास लाइफ के कर्मास से, हमारे थॉट पैटर्न्स, पास लाइफ के बिहेवियर्स एंड सब कुछ से ना हम मडीड हो गए हैं। वी हैव बिकम अ टार्निश्ड मिरर। दिस मिरर इज नो लॉन्गर शाइनिंग the divinity properly. But if you want to see the pure Tao, the pure source, the pure power of the universe, you should connect to nature. You should see how nature behaves. और बोल रहे नेचर में देखो, हार्ड के सामने, सॉफ्ट के सामने हार्ड हार मान जाता है। इफ यू सी नेचर में ना, जो सॉफ्टेस्ट होते हैं वो सबसे, वो उनके सामने जो हार्ड वाले चीज है वो हार मान जाता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इट इज टॉकिंग अबाउट इज वाटर। वाटर देखो, एंड द ऑल्सो आई kept we are taking this verse. So before I take this verse, these are the verse, so people who are new, who don't know, this is I think 81 to 82 verses written by Lao Tzu. He was a very 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 famous enlightened master. उन्होंने around 82 verses शायद poems उन्होंने लिखे हैं, और एक एक poem is like gem. It has so much of meaning, so much of understanding of the universe, the source, the God, whatever you say, and it's called the way. दाव को क्या बोलते हैं? इट्स द वे। ये फ्लो में जाता है हमेशा। देखना, दाव या फिर गॉड, यूनिवर्स कभी रेजिस्टेंस में नहीं जाता है, हार्ड वर्क में नहीं जाता है, हमेशा ऐसे नहीं जाता है, वो हमेशा फ्लो में जाता है। इफ यू सी वेन एवर वी आर गोइंग इनटू एम्प्टीनेस ऑल्सो, हम एम्प्टीनेस में फ्लो में जाने का कोशिश करते हैं। तो इसको लाओजू हैज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। लाओजू इतने एनलाइटन मास्टर थे कि चाइना में बहुत ज्यादा वॉर हो रहा था। एंड उनको ये सब चीज पसंद नहीं था, बहुत ज्यादा मार पीट काट कूट। तो उन्होंने क्या किया, जाने के पहले उन्होंने 82 वर्सेस लिखे, और फिर डीप माउंटेन्स में जाके वो वहां पे उन्होंने रिट्रीट ले लिया, कि वो वहां रहने लगे, क्योंकि उनको इतना मार पीट काट देखना नहीं था। वो लाइक अ हर्मिट ही स्टार्टेड स्टेइंग, बट उसके पहले ही रोट दिस 82 वर्सेस बिफोर ही लेफ्ट। एंड ये जो एक्चुअल जो नेम है उस बुक का, उसका नाम है दाओ दे चिंग, बट इट इज रिटन एज टी ए ओ, टाओ, टी ई टे, CHING, चिंग, बट प्रोनाउंस होता है दाओ दे चिंग। चिंग मीन्स बुक, ते मीन्स द द एप्लीकेशन ऑफ, एंड
Dao means Dao means the way, the great way, the great way of the universe or the source or कुछ भी बोला आप उसको. Okay, so a book which shows the application of the universe or the great way. Okay, so यहाँ का ये वर्स में उन्होंने बोला है कि he's talking about these that the nature has its own way of showing कि देखो सॉफ्ट विन करता है हार्ट के ऊपर. और कैसे है वाटर, कैसे आप देखो कि क्या पे यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या बोला है, दैट विदाउट सब्सटेंस एंटर्स वेयर देयर इज नो स्पेस. जो सब्सटेंस इनमें उसमें दिखने में बिल्कुल सब्सटेंस नहीं है, वही जहां पे बिल्कुल स्पेस नहीं है वो वही वहां पे घुस सकता है. पानी एक ऐसा चीज है जो कहीं भी एकदम छोटा सा भी लीक हो वहां पे भी वो घुस के वहां घुस सकता है. पानी एक ऐसा चीज है जैसे वैलीज ना, लाइक माउंटेन्स के बीच में कभी कभी वैलीज होते हैं, रिवर. तो बहुत बहुत जगह में देखा गया है कि इट इज एक्चुअली दे वेर कर्व्ड बाय कंटिन्यूअसली. कुछ नहीं कि अचानक से फ्लो आया है, बाढ़ आया, ऐसा कुछ नहीं. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर कार्व दैट ह्यूज वैली. सो देखो इतना बड़ा माउंटेन भी एक वाटर कार्व कर देता है अपनी सॉफ्टनेस से, अपनी जेंटलनेस ने, अपनी डेलिकेसी से, डेलिकेट्स नेचर से. ओके, सो सो यहाँ पे दिस इज व्हाट इट इज सेइंग दैट वेन एवर यू आर ट्राई टू टेक दैट काइंड ऑफ नेचर. यस, इन स्पिरिचुअलिटी हम जब मेडिटेशन करते हैं वी पुट 50-50 वी पुट विल पावर. जैसे थर्ड आई में हम बहुत सारा ब्रेथ वर्क करते हैं एवरीथिंग, जहां पे वी पुट अ लॉट ऑफ विल पावर. आफ्टर दैट द 50% वी व्हाट डू वी से, व्हाट डू वी डू इन मेडिटेशन, वी से जस्ट सरेंडर, जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ. क्यों करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक the final aim of us, of all spiritual people, is to reach that allowing state, surrender state, flow state. हम वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं, इसी वजह से हम इतना कुछ पहले मेडिटेशन में इतना एफर्ट देते हैं. हम सिद्धा क्रिया, बहुत सारी क्रियाज हम करते हैं ना. हाँ, ब्रेथ वर्क्स करते हैं, सिद्धा क्रिया करते हैं, इतने एफर्ट लगाते हैं, इतना विल पावर क्यों लगाते हैं? ताकि द एंड गोल शुड बी दैट वी शुड गो इन टू फ्लो. We should reach the state of flow. And here also it's saying by reaching the state of flow, you will be able to achieve whatever you want to achieve in this world. Not by resisting, not by fighting. क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए, मैंने तो बहुत प्रेशर लगाया है, क्यों नहीं हो रहा है. राइट, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना जब भी कोई काम करते हैं. मेरे लाइफ में till the time I was putting so much of pressure in my life, I saw no change, only challenges, only resistance, only pain and problem. The day I said बहुत हो गया मुझे, I just let go, I just surrender, I will allow. And it comes from a state of I'm also very contented state से भी कभी कभी आता है कि I'm so satisfied. होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो अच्छा, so I'm just allowing, let the universe do its work. And that's when I saw in my life that my life started flowing. So many benefits in my life started flowing when I stopped resisting, stopped, taking, forceful actions in my life. And this verse talks about the same thing. Okay. आप पानी भी आप देखो, आप फोर्सफुली पानी को पकड़ने का कोशिश करो तो पानी यहां से निकल जाएगा, आप होल्ड नहीं कर पाओगे. बट अगर आप जेंटली उसको पकड़ो, किसी भी चीज को अगर जेंटली पकड़ो, सॉफ्टनेस इज द वे ऑफ द दाओ बोलते हैं. तो किसी भी चीज को पानी दे, बहुत देर तक आप इसको पकड़ के रख सकते हो पानी को. Okay, so this is how we also in our life should start becoming a state of softness, gentleness, flow, allowing, surrendering, whatever you want to name it. Okay. And पानी के बहुत सारे, let us understand so many qualities of water so that we understand these are the qualities we should have in our life, so that we have a very nice flowy life, joyful life, जहाँ पे हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं और सब कुछ हो भी जा रहा है. डू वी नॉट वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ? क्यों हमको एकार्ट टोल बोलते प्रॉब्लम क्या है पता है? ईगो ऐसा है कि ईगो को पेन, झमेला, प्रॉब्लम ये सब चाहिए. तो इस वजह से ईगो को हमेशा हर जगह में प्रॉब्लम देखता है, प्रॉब्लम खोजने का कोशिश करता है. बट दाओ इज टॉकिंग अबाउट कि बिकॉज आप इतना प्रॉब्लम खोज रहे हो इसलिए आपके जीवन में और प्रॉब्लम आ रहा है. यस, देयर इज अनदर फैक्टर, कर्मा एंड एवरीथिंग, बट
अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अनदर फैक्टर जहाँ पे आप बहुत फोर्स लगा रहे हो ईगो के थ्रू. एंड नाउ लर्निंग फ्रॉम द वे ऑफ द दाओ और अंडरस्टैंडिंग लाइक अ वाटर, हाउ वुड यू डू. वाटर क्या करता है? हाँ, वाटर जब फ्लो भी करता है ना, वो सबसे लो पोजीशन में जाके फ्लो करता है. वो कभी नहीं सोचता कि मुझे हाई पोजीशन में जाके रुकना है, ताकि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें एंड एवरीथिंग. उसको एंड ऑल्सो बहुत इल्यूसिव होता है. इट डजंट वांट एनीबडी टू सी इटसेल्फ. इट्स वेरी लाइक ठीक है, मैं सबसे नीचे, ताकि कोई मुझे ना देखे, मैं आराम से जाके वहां पे रहूंगा. ओके. नॉइजी, बहुत ज्यादा नॉइजी ना हो, बहुत ज्यादा मुझे लोग नोटिस ना करे. वाटर, वाटर का नेचर देखो, कुछ भी चीज वो नोटिस करने के लिए नहीं करता है, वो जस्ट अपने आप फ्लो कर रहा है. उसका फ्लो भी देखो, इज नॉट फोर्सफुल. वो जहां पे लेके जा रहा है, ग्राउंड का जो कर्विंग है, जहां से वो कर्व हो रहा है, लो है तो लो है, कर्व है तो कर्व है, वहां से वो सिर्फ जा रहा है. एंड फाइनली इट फॉल्स और इट सेटल्स ऑन अ प्लेस विच इज लो, नॉट नोटिसेबल. कोई ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब देखे. आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी मी व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ, राइट. मैं देखो कितनों को पानी दे रहा हूँ, मैं कितनों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, सबको देखना चाहिए का. कुछ नहीं करता है. वो जाके एकदम छोटा सा ऐसा ही करके बैठ जाता है पानी नीचे से. लेकिन देखो उसका पावर देखो, सारे लोग नीचे वॉक करके जहां पे वो है वहां तक आते हैं उसको पीने के लिए. उसने कुछ एफर्ट नहीं दिया है, लेकिन एवरीबडी रन्स टू इट टू ड्रिंक द वाटर. दिस इज हाउ वी शुड बी, नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, नॉट ट्राइंग टू प्रूव, गोइंग विद द फ्लो, ट्रस्टिंग द दाव, अलाउिंग, सरेंडरिंग. ऑल दिस थिंग्स जब हमारा बेसिक नेचर होने लगेगा, स्लोली स्लोली वी विल सी दैट यू विल सी दैट आप बिना मांगे आपको बहुत कुछ मिल जाता है. दैट्स व्हाट अगेन सी द लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं कि रेयर इंडीड आर दोज हु ऑब्टेन द बाउंटी ऑफ दिस वर्ल्ड. जो लोग ऐसे स्टेट से काम करते हैं, दाव का स्टेट से, ऐसे सॉफ्टनेस से काम करते हैं, वो दे ऑब्टेन द बाउंटी ऑफ दिस वर्ल्ड. वर्ल्ड का सारा जो अबांडेंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ, ऑल जो आप बोलो नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, दे इट कम्स टू देम. they don't have to run after them, because they are in a very flow and surrender state. यहाँ पे एंड इट लुक्स लाइक नॉन एक्शन. आप ऐसे काम करते हो ना, आप काम कर रहे हो, लेकिन रेजिस्टेंस, यू आर नॉट डूइंग, नॉट इंटरफेयरिंग. क्या होता है, काम तो करना है, दाव में भी, दाव स्टेट से भी आपको काम करना है, लेकिन आप देखना वो नेचुरली फ्लो में होता है. आप इंटरफेयर नहीं करते हो. आई गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. आपके, एज फॉर एग्जाम्पल, मैनिफेस्टेशन के लिए आपने, आप कुछ मांगते हो, राइट. फिर उसके बाद बार बार अगर आपने विजुअलाइज किया, सब कुछ किया एंड एवरीथिंग, लेकिन बार बार अगर आप बोलो कि हो क्यों नहीं रहा है, मैं ऐसे करती हूँ ताकि वो हो जाए, मैं ऐसे करती हूँ, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, मुझे वो भी देखना है, यूनिवर्स को कुछ पता नहीं, मैं डिसाइड करूंगा. इन मैनिफेस्टेशन आई हैव टॉट यू द टेक्निक दैट हाउ पे कभी मत जाना. नेवर गो टू द हाउ, इट क्रिएट्स रेजिस्टेंस. कि कैसे वो फुलफिल होगा, नेवर गो इट. वंस यू विजुअलाइज इट, वंस यू कंटिन्यू टू विजुअलाइज इट, यू डोंट वर्क, यू जस्ट गो विद द फ्लो. राइट नाउ तुमको जो मन कर रहा है वो करो. अभी मन कर रहा है ये करने का, बट वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे इंटरफेयर करना है, ये ठीक से नहीं हो रहा है, जो मैं चाहती थी, जो मैंने विजुअलाइज किया, अरे वो तो ऐसे नहीं हो रहा है. लेकिन शायद यूनिवर्स बोल रहा है ये तरीका ज्यादा बेहतर है, बट आप वहां पे भी दिमाग लगा रहे हो. दिस मीन्स इंटरफेरेंस. सो दाओ का नॉन एक्शन, यहाँ पे जहां पे बोल रहे, दाओ मीन्स नॉन एक्शन. नॉन एक्शन का मतलब है आपने कर दिया, उसके बाद जो जरूरत है थोड़ा बहुत एक्शन, इजी फ्लोई एक्शन, जो फ्लो में जा रहा है आप उसको करोगे. आप एक्सेस जाके वो सब नहीं करोगे, जो भी आपका एक्सेस करना है वो सब नहीं करोगे, राइट. वेन डायर यहाँ पे बहुत सुंदर, इंटरफेयर नहीं करोगे आप, इंटरफेयर करना नहीं करोगे इसमें, हो क्यों नहीं रहा है ना वो स्टेट. सो वेन डायर यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पे वो बोल रहे हैं कि यू नो मैं जब, like very beautiful examples, you will understand what, then you will understand how to apply in your life, and you can let me know after this session. सो वेंडार बोल रही कि मैं ना, ही यूज टू स्विम इन द सी. ओके. तो बोलते कि 1 घंटा तो मैं स्विम करता हूँ, 1 घंटे के बाद, बिकॉज एक्सरसाइज करना है एवरीथिंग, 1 घंटे के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ कि पानी का बहाव किस तरफ है.
एंड मैं उस तरफ अपने आप को, अपने शरीर को ढाल लेता हूँ, और उसके बाद अपने आप मैं स्विम जो करता हूँ वो मुझे और दर्द नहीं देता है, बिकॉज मैं आई एम स्विमिंग विद द फ्लो. Okay, and this is what he's saying, that I am swimming. It's not that I am not swimming, but मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं पानी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं पानी के साथ जा रहा हूँ. Okay, so this is the way of the Tao. Then he also says that there are some, there are some, runners जिन्होंने जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक टाइम के बाद जब वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना, बहुत लंबा लंबा मैराथन, विनर्स को उन्होंने, some interviews of winners, and they have what they have explained, how they have achieved, how they got into the first rank and everything. तो these winners said कि एक टाइम के बाद जब बहुत दौड़ना, मैराथन में बहुत दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, एक टाइम के बाद जब बहुत बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है ना, वो फिर और दिमाग नहीं लगाते हैं. दिमाग नहीं लगाना इज ऑल्सो द वे ऑफ द दाओ. इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रेन doesn't let the Tao work. Too much of interference of the brain, that means the God cannot work. आप अपना analytical mind को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो. So these trainers, what they do at that time is that when they are totally exhausted and they don't know how they are going to reach that final point, they just let their body and their hands just work the way it needed to work, and they just be without using the mind. They just allow the Tao to work. In a way, they just be being. Being state is also the state of the Tao. If the old students, they know being state means universe का state, feeling the Tao inside, the effortless state, the flow state. उस state में वो लोग सिर्फ, वो उनका बॉडी चल रहा है तो चल रहा है, उनको नहीं लग रहा है वो कर रहे हैं. तो ऐसे करते करते ना वो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल कर सकते हैं. दैट्स व्हाट दीज विनर्स हैव सेड. दिस इज हाउ एट द लास्ट लैप, दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी दे फॉलो. सो इन आवर लाइफ ऑल्सो, जहां पे भी आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दे, लगाओ. क्यों नहीं लगाओगे? You will put all your efforts, but there comes a times because that is what you needed. तो उसके बाद इंटरफेयर मत करो, अलाउ कर दो. एक there is also a place of surrender. You have to have that place of surrender. And अगर पहले से हो तो बहुत अच्छा. It is difficult for people who are not very deep into spirituality कि पहले से ही उतना एकदम flow state में रहो, allow. I have told you examples. I have told you examples of these enlightened masters who can do magic. हाँ, कुछ भी कर बोलो तो हो जाएगा ऐसा बोलते. क्यों हो जाएगा बोलते? बिकॉज वो लोग, उनको लगता ही नहीं कि वो कर रहे हैं, वो डाउ स्टेट में, दे आर अलाउइंग द डाउ टू वर्क थ्रू देम, एंड दे से अच्छा ये भी हो जाएगा, हो जाएगा. एंड द पावर जस्ट वर्क्स थ्रू देम लाइक अ फ्लो फ्रॉम देयर लाइफ. अगर उतना भी नहीं हो तो एफर्ट लगाओ. एक टाइम के बाद समझो कि बहुत हो गया एफर्ट, मुझे आई जस्ट हैव टू लेट गो एंड सरेंडर एंड बिकम लाइक द वाटर. आई हैव टू लेट गो. देन यहाँ पे बोल रहे कि बेस्ट ऑफ द मास्टर्स, इफ यू if the best of the masters, आप बोलो कि हम उसको क्या बोलते हैं, golf players and other kind of karate and all these champions, उनको उनको भी जब पूछा गया है, वो लोग बोलते हैं कि they just go with the flow. जब they are the people, the best of them are always in the Tao state. करते 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 इतना उनका इजी हो गया है, प्रैक्टिस करते 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 इतना इजी हो गया कि उनको लगता ही नहीं कि वो कर रहे हैं, वो जस्ट फ्लो में करते हैं काम, और वो हो जाता है. दिस इज व्हाट आई जस्ट रीड एंड यू विल सो दैट you know what he's saying. The most successful ball players run, jump through, catch and shoot with a softness that seems to stupefy most observers. They don't use force, nor can they find words to describe how they do it. So when people ask, they don't, or they cannot even explain because they are not spiritual. वो लोग बोल नहीं सकते कि मैं दाव स्टेट से कर रहा था. हमको पता है, उनको तो पता नहीं. But this is what they see. They just go. They don't use force. The most talented artists dance softly without effort, paint quietly without force, write easily without struggle by allowing the words to come to them. As Lao Tzu reminds you, these are rare beings who live the master's way. And because of these, these people, they work through the Tao, they, bountiful, that's what it says now, obtain the bounty of this world. They obtain all the goodness, all the different kinds of abundance of this world come to them. Yeah. So, yes, did you understand this?
So it says that how to follow the Tao. It says practice the way of non-action or performing without effort by letting go of your inner drive to push ahead. Okay, so instead of having that inner drive to push ahead, हमको ना हमेशा, क्योंकि स्पेशली इंडियन मेंटालिटी, पेरेंट्स ने सिखा दिया है बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। या फिर बांग्लादेश के भी अगर लोग हैं, बेटा फर्स्ट आना है। ये है थोड़ा एशियन पेरेंट्स में है, तो पुश करना है, पुश करना है, पुश करना है, हमको बचपन से ही सिखाया गया है हर चीज पुश करना है। और यहाँ पे उल्टा सिखाया गया है, यहाँ पे बोल रहे प्रैक्टिस द वे ऑफ नॉन एक्शन और परफॉर्मिंग विदाउट एफर्ट by letting go of your inner drive to push ahead. You will see that you ironically do better than when you tried so hard. Okay, in your work become more tolerant in your drive to achieve by softening your attitude and behavior. वर्क में भी become more tolerant कि अचीव करना है, वो वहां उसको बंद करके सॉफ्टनेस लाओ। कोई भी काम में become tolerant. Okay, let it happen in its own pace. I will do my best, but let it also happen in its own, have a balance of both. Okay, so yes, so now yes, tell me, how can you relate to this? And has it shifted anything, any kind of Rajiv, did you get it to some extent, that what you have to do? Along with, yes, there might be another factor. Non-focus is another problem, but this is what you also need to do. Maybe हम लोग कभी बहुत ज्यादा force लगा देते हैं. Yes, Didi, it was quite similar to my experience actually. I was also before trying to control a lot, but last few months I have gone into more. I have gone more into bhakti and so on. So I just surrender and I said, let it happen. Whenever it Lovely. happens, it happens. I just pray every day that Hmm. I can put more work into it. That's all I pray for. Otherwise, the results, I said, if it happens, it happens. Absolutely. If not, it's also okay. I have enough and I have plenty for my own use and to help others. So, of course, I want more, but if it happens, it happens. Otherwise, I am okay. So, this is the mindset right now. Fantastic. Fantastic. Okay. Also try to understand, कभी कभी लोग don't think Tao is equal to laziness. Okay. You have to do your best. कभी कभी क्या होता है, हम लेजीनेस को दाव के साथ कंपेयर कर देते हैं. It's not that. You cannot become lazy and say I'm in the Tao state. Okay. So you have to do your best with an attitude of what Rajiv said is, the results I let it go and I surrender. I will do my best and then I will surrender. And have that, both that balance. Hmm. ठीक है? Anybody else wants to share anything? Okay. So what we are, yes, Tanmoy? আমার কাছে মনে হয় যে I think it's like that we don't actually what I understood and what I heard before that just do your uh, do your uh, do your work not expect any result will come automatically if you do try your best with a positive intention and what you are going to do if you understand then the result will come automatically if I Even when you do your work, that should be done with softness, Tanmoy. Okay? yes yeah. Like what it is saying is that everything should be, even when you're doing your work, it doesn't mean कि अभी मुझे एक्शन लेना है बाद में सरेंडर करूंगी, एक्शन के टाइम में पूरा हार्ड हो जाऊंगी। एक्शन के टाइम में भी मुझे सॉफ्ट रहना है। मैं काम भी कर रही हूँ, कुछ लिख भी रही हूँ, बट एम आई अलाउिंग एट दैट मोमेंट, आई हैव टू कीप चेकिंग, एम आई इन अ सॉफ्ट स्टेट, एम आई इन अ सरेंडर स्टेट। Yeah. That's important as I also feel that like this is हाँ, कभी कभी हम ना इसको गलत कर देते कि कर्म करो फल की आशा मत करो। फल आशा जब नहीं करे तब हम सरेंडर करें, तब सॉफ्ट में चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत हार्डनेस में चले जाते हैं। उसमें भी हार्डनेस नहीं जाना है, काम भी कर रहे हैं,
उसमें भी कैन आई एंजॉय? जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं रिदान को बोलती हूँ कि मुझे, रिदान को बोलती हूँ म्यूजिक लगा बाबा, कुछ Hmm. म्यूजिक लगा के पढ़ना. So you are doing work, but there should be some softness. Can you feel even that work, that study should not feel like, oh, you are doing very hard. Did you get it? Hmm. हाँ. So, बाबा म्यूजिक लगा, उसके साथ पढ़ाई कर. तो मैं म्यूजिक लगा देती हूँ. या फिर I teach him the Pomodoro technique. Then go out and after 25 minutes, go out for 10 minutes of relaxation and come back, so that he is in the state of flow. Hmm. या सो Yes. ऐसा नहीं है कि उस टाइम में भी बहुत हार्ड वर्क लगाना है. बच्चों के साथ भी हम लोगों को बहुत इट्स लाइक दैट. इट्स लाइक, सो एवरी एरिया इज अ वे ऑफ आवर ओन ट्रेनिंग. हाउ सॉफ्ट आई एम इन एवरी एरिया. इवन इन कुकिंग आई टेल यू, मैं क्या करती हूँ. ऐसा नहीं है कि दाव का स्टेट, आई गिव यू एग्जांपल्स हाउ वी डू, हाउ आई अप्लाई दाव. लाइक कुकिंग कभी कभी ना इट बिकम्स लाइक चॉप करना है तो अरे टाइम पे खत्म करना है, टाइम पे खत्म करना है. That also you can do it very softly. Cooking can also be done very softly. Kaise? You put some nice music, chop and enjoy what you are cutting, right? And you are finishing the job, but with lots of softness. And softness के साथ देखो joy भी आता है. Hardness के साथ देखना depression, stress आता है. Did you see Tanmoy? With hardness, with stress और depression आ जाएगा. किसी भी चीज को आप Yes. hard सोचो ना, ये finish करना है, task है, complete करना है. उसके साथ stress, tension, hard. बट सेम चीज आपको फिनिश करना है, आपको पता है, बट उसको भी अगर दाउ स्टेट से करो, सॉफ्ट स्टेट से, एंजॉय स्टेट से, वो भी आप कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर नो लॉन्गर फीलिंग दैट स्ट्रेस. व्हाट आई डू इज दैट आई लव बुक्स, राइट? ऑडियो बुक्स में चला लेती हूँ जब मैं काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ. यहाँ पे तो अगेन आई हैव टू स्टार्ट माय कुकिंग अ लॉट बिकॉज आई एम लेटिंग गो ऑफ माय कुक एंड आई एम नो लॉन्गर टेकिंग कुक एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग. डेनमार्क में मेरा इवनिंग में आई यूज टू कुक, आफ्टरनून इवनिंग आई यूज टू कुक. And what I would do is that, or late mornings I would cook. What I would do is that अपना बूम बॉक्स में लेके जाऊंगी अपने किचन में. ऐसा नहीं कि मुझे किसी भी चीज में स्ट्रेस नहीं चाहिए भाई, बिकॉज स्ट्रेस से मेरा वाइब्रेशन लो हो जाएगा, मुझे पता है. सो मैं बूम बॉक्स लेके जाती हूँ, आफ्टरनून में उसको लगाती थी साइड में, एंड उसको अच्छे से चला के मैं चॉपिंग कर रही हूँ, फिर सुन रही हूँ, अच्छा ये क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा, फिर से चॉपिंग कर रही हूँ. So that is what I'm saying. For every activity, you can find your own way of following the Tao, the softness, the joy, the surrendering. Okay? Yes. Life is meant to, Abraham Hicks always says, Abraham Hicks, what a beautiful, they are enlightened masters who channel through Esther and Jerry. Many, if people who are new, they don't know. But Abraham Hicks are like, they are a bunch of enlightened masters from the astral plane, जो Esther and Jerry के through channeling करते थे. तो वो बार बार बोलते हैं, life is meant to enjoy. लाइफ इज नॉट मेंट टू बी इन स्ट्रगल. हमको पता नहीं रास्ता, इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं. थिक नाहन क्या बोलते हैं? थिक नाहन बोल रहे हैं कि डोंट बी स्कैर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स, बी स्कैर्ड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सबके जीवन में है, लेकिन इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम. कि आपको पता नहीं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तब आप स्ट्रेस होते हो. स्ट्रेस में you will behave differently, act differently. But when you know how to handle this problem through inner child, we have taught so many beautiful techniques. Inner child, thought shift, emotion shift, ये सब हमने बहुत कुछ किया. हम फिर से करेंगे राजीव, don't worry. Maybe every Monday we'll pick up a revision topic and we'll do all these things. And for Tanmoy also, Tanmoy has missed a lot of topics. And when we do this, we no longer feel that life में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा लगता है. Okay? Anybody else has anything to say? Didi, I have a question. It's a little bit off topic, but should I ask it later or now? Yeah, if it is out of this topic, then I will take it after the session. Wait, okay? I will finish the meditation and I will take your topic. I will not leave. Okay? So don't worry. If it is related to the topic, you can ask me a question now. Anybody else has anything? And then we will start. Okay.